سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین اکرام، پیش خدمت ہے ہمارا کوئز شو یعنی معلومات ہی معلومات۔ کون ہے یہ عمر بھائی؟ کون ہے یہ؟ عمر بھائی سے میری ملاقات کروائیں۔ ناظرین اکرام، بتاتا چلوں کہ معلومات ہی معلومات کے مقابلے کے جو فائنلسٹ ہوں گے ان کے لیے سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائز ہے، اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے کیش پرائز ہے، اور جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ، فوڈ بستی، عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ میرے بیک ڈراپ پر بھی دیکھتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہیمانی مرحبا، پاپولر گروپ، کیو این این اینڈ ریفلینڈ شوز والوں نے۔ ان سبھی کا تعاون اور ان سبھی کے گفٹ ہیمپرز کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے فائنل کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، بتاتا چلوں کہ آج بھی سلیکشن راؤنڈ ہے اور ہمارے 18 راؤنڈ، ابھی میری بات ہوئی عامر فیاضی صاحب سے کہ ہمارے 18 راؤنڈ جو ہیں وہ سلیکشن راؤنڈ ہوں گے، اس کے بعد 19، 20، 21، 22، 23، 24 ہمارے کوارٹر فائنل راؤنڈ ہوں گے۔ اس طرح 6 کنٹیسٹنٹس ہمارے پاس آ جائیں گے۔ 25 اور 26 رمضان کو ان کا ہوگا سیمی فائنل۔ اب چونکہ سیمی فائنل میں ایک کنٹیسٹنٹ تو پک کر لیا جائے گا جو ٹاپ آف دا لائن ہوگا، لیکن جو کنٹیسٹنٹ ان 6 کے 6 بچوں میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کرے گا، 2 سیمی فائنل، جی وہی سیمی فائنل، 2 سیمی فائنلسٹ تو ہم لے لیں گے۔ اس کے بعد میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ جو 6 بچے ہوں گے ان میں جو تیسرا بچہ ہوگا ان دونوں کے علاوہ جس کے سب سے ہائیسٹ سکور ہوں گے تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے آخری فائنلسٹ کے طور پر، اور اس طرح 3 فائنلسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آج یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ کوارٹر فائنل راؤنڈ میں اپنا نام لکھوانے جا رہا ہے۔ کنٹیسٹنٹ اے اسد اللہ نجف کراچی یونیورسٹی سے، کنٹیسٹنٹ بی محمد بن سرفراز ایمز ایجوکیشن سے، کنٹیسٹنٹ سی عائشہ معین اسکول آف لا کراچی یونیورسٹی سے۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کہتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ بالکل ایزی رہیں، ریلیکس رہیں، گھبرائیں نہیں۔ آپ گھبرائیں گے تو آپ کی زبان لڑکھڑائے گی اور اس طرح آپ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ صحیح جواب معلوم ہونے پر بھی بچوں کو میں نے دیکھا کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نیگیٹو مارکنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے بزر راؤنڈ کا اصول آپ جانتے ہیں کہ اگر درست جواب دیا تو 10 نمبر، غلط جواب دیا 10 نمبر میں آپ سے واپس لے لوں گا، یعنی -10 کر دوں گا آپ کو۔ اور سوال اگر صحیح نہیں سنا، ادھورا سنا، اور اس کے بعد آپ کی ازمپشن وہ نہ ہوئی جو کہ سوال تھا، تو پھر بھی آپ کو ملیں گے -10۔ اپنا بزر چیک کروا دیں ذرا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تینوں تیار رہیں، بزر راؤنڈ کا آغاز ہوگا اور ہمارے مہمان جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، مفتی محمد سہیل نظام جلی صاحب، جناب عامر فیاضی صدیقی صاحب، تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج یہ تینوں ہی بزر راؤنڈ کا آغاز کریں گے۔ پہلے پوچھ لیتا ہوں ٹیم کون سی ہے؟ یہ بڑا اچھا سا ایک میں نے شروع کیا ہے، بتائیے قاری صاحب آج آپ بتا دیں۔ میری تو سی ہے۔ آپ کی سی ہے، عامر بھائی آپ بتائیں، آخر میں مفتی صاحب سے آج پوچھیں گے۔ اب مفتی صاحب جو سلیکٹ کریں گے وہی میری ان کی ایک ہی ہے۔ بس صحیح ہے، بتائیں۔ اے آپ نے بی آج میرے حصے میں آئی اور میں کسی کی تائید نہ کرتے ہوئے کنٹیسٹنٹ بی کو اپنے حصے میں لیتا ہوں، گو کہ میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں کہ آڈیشن راؤنڈ میں یہ جو ہے وہ کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائے تھے، لیکن آج آئی ایکسپیکٹ کہ اچھا پرفارم کریں۔ آپ لوگوں نے اچھی ٹیم سلیکٹ کر لی ہے اور یہ ٹیم میری، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، تو مقابلہ ہے۔ جی بزر راؤنڈ کا آغاز ہوتا ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے سوال کے ساتھ۔ غور سے سنیے گا سوال۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بتائیے کیا سوال ہے ان کا؟ پہلی آیت پوچھ رہے تھے، کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ انہوں نے بولا، اس کے آگے سوال کیا ہے ان کا؟ میرا سوال سنیں پہلے غور سے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت ایک اور جگہ بھی آئی ہے، کہیں ایک آیت کا حصہ ہے اس کے اندر آئی ہے یہ، وہ کون سی صورت میں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ایک اور جگہ آیا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں نہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ قاری صاحب، ویسے بھی سوال یہ جلد بازی میں سنا تھا، -10 رول از رول، لیکن یہ غلط جواب دے کر ہی -10 انہوں نے بہرحال حاصل کر لی ہے۔ اور میں نے سوچا تھا اگر یہ جواب دے بھی دیتی۔ سورہ نمل، جب سلیمان علیہ السلام شاید خط پڑھتے ہیں۔ آپشن دوں؟ آپشنز دے دیں۔ سورہ مومن، 0 پر لے آئیں گے، -10 کر سورۃ کے 0 پر لے القصص یا -10 سورۃ الروم؟ اگر آپ نے درست جواب دیا تو ہم آپ کو 0 پر لے آئیں گے۔ -10 آپ ہو چکی ہیں، سورہ روم تو نہیں ہے۔ -10 ہو چکی ہیں۔ سورہ مومن، سورہ قصص
या सूरह रूम, इनमें से एक बता दें कौन सी सूरत में है। सूर्य कसस। नहीं, आपका जवाब गलत हो गया। गलत है। और इस तरह अब जी, अब आप -10 पर ही रहेंगी, मजीद नहीं ऐड करते माइनस मार्क्स। बी बताइए। सूरह मोमिन। सूरह मोमिन। सूरह मोमिन दुरुस्त बिल्कुल जवाब। सही 10 जवाब नंबर कंटेस्टेंट बी को मिल गए और -10 कंटेस्टेंट सी को। जी अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ामजादी साहब की जानिब से। गौर से सुनिएगा कि कुरान की सबसे बड़ी आयत किस पारे में है। जी बी बताइए। तिल का रसूल, तीसरा पारा। क्या बात है। कंटेस्टेंट बी 10 नंबर्स के साथ फिर बरतरी लेते हुए। और जनाब आमिर फयाजी साहब का अगला बजर राउंड के सवाल। कुरान करीम के सबसे पहले हाफिज कुरान का नाम बताइए। बताइए। जी सी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। गलत जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही थे। मैंने पहले कहा है कुरान सबसे करीम पहले के हाफिज सबसे कुरान। पहले हाफिज कुरान। हाफिज या हाफजा। हाफिज। हाफिज कुरान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर सहाबियों में हजरत उस्मान और ज़ैद देखिए बिन आपने तो हजरत उस्मान गनी का कह दिया ना, वैसे तो सवाल का जो सही जवाब है वो नबी अलैहिस्सलाम का ही है, हजरत मोहम्मद नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि सहाबियों में वसल्लम। सबसे पहले उस्मान गनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैंने हाफिज कुरान का पूछा था, आपने मेरा सवाल नहीं, मैं क्या देखिए करें? बेटा सवाल तो यही था ना, सबसे पहले हाफिज। ये तो नहीं कहा गया सहाबा में सबसे पहले सहाबा हाफिज। में कौन? मैंने तो आपसे पूछा तो सबसे आपसे पहले पूछा ही हाफिज नहीं। कुरान कौन थे? आप ये गलत ही कंसीडर किया जाएगा। आप -10 की Minus- कंसिस्टेंसी पे आ रही हैं आयशा, और आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मुझे ये था कि आप स्कूल ऑफ लॉ की बच्ची है और बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, तो लेकिन मैंने जी कहा कि सहाबा में सबसे पहले आपने हजरत कहा, सवाल लेकिन हमने सहाबा का तो था ही नहीं ना, मैंने तो पूछा कुरान करीम के सबसे पहले हाफिज कुरान का नाम बताइए। देखो आपने कहा साहबा में, हमने तो नहीं पूछा साहबा में। क्यों कहा आपने? क्यों कहा आपने? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं क्यों कहा आपने। चलें जी, बजर राउंड का आगाज हो रहा है और वो आगाज मैं करने जा रहा हूं, यानी कि 3 सवालात के 30 नंबर्स आगाज हो चुका है। वो 30 नंबर्स ये आपके लिए एडिशनल है। अगर ये लोग ना आते तो आपका इतना बड़ा फायदा ना होता। इन लोगों की मेहरबानी की तशरीफ लाते हैं और आप लोग का हौसला भी बढ़ता है और आप लोग के नंबर्स भी बढ़ते हैं। चलें जी, बजर राउंड को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल जनाब ए बी सी तीनों से सवाल है। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, जी ए ने बजा दिया था, जी 8 साल थी। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर कंटेस्टेंट ए के नाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर की, जी सी क्या सवाल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने जी की? दुरुस्त है, बताइए। हजरत अबू तालिब। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए, यानी -20 से, मेरा ख्याल है -20 थे, -20 से ये -10 पे आ गई हैं। जी किस नबी को आग में डाला गया? कंटेस्टेंट सी। बी सी 7 बजा है, जी ए और बी ने 7 बजा है, अच्छा, ए बी सी 7 बजे, ए और बी ने 7 बजा है। तो फिर सवाल बदल देते हैं। चलिए ठीक है, सवाल बदल देते हैं। बताइए कि जिस नबी को आग में डाला गया था उस नबी को आग में किसने डलवाया था? जी सी नमरूद ने डाला। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपकी और इस तरह आप 0 पर आ चुकी हैं। किस नबी को अल्लाह ताला ने आसमानों पर जिंदा भी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। अबुल अरब किस नबी का लक़ब? सी हजरत इस्माइल अलैहि दुरुस्त सलाम। जवाब। 10 नंबर फिर आपने पा लिए। किस नबी के बिन बाप का मौजज़ा? सी हजरत ईसा अलैहि सलाम। दुरुस्त जवाब। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किसने बजाया? बी। बी बताइए। भाई, दोनों भाई का रिश्ता। यही सवाल था, यही जवाब। दुरुस्त नंबर। 10 नंबर आपके हुए, सॉरी दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद खानदार बनु हाशिम के सरदार कौन थे? जी हजरत अबू तालिब। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर कंटेस्टेंट ए के नाम। पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम किसके साथ? ए हजरत अबू तालिब। दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम गए तो आपकी उम्र क्या थी? ए 12 साल। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर कंटेस्टेंट डे के नाम हुए। बस राउंड हुआ खत्म। तीनों ने बराबर खेला है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी से आगे पीछे नहीं, तकरीबन आसपास ही खेल रहे हैं। अब आते हैं विजुअल राउंड की तरफ। कंटेस्टेंट डे, सवाल आपका, जवाब भी आपका। आप लोग गौर जरूर कीजिए और जाहिर है जिसे कहते हैं। लेकिन ये बताइए जी, क्या कह रहे थे आप? ये अचार में होते हैं। जी अचार में होते हैं, अचार बनता है इनका। अचार में तो ये बहुत कम होगी, अचार बहुत महंगा हो जाएगा। अगर ये अचार में डलेगा ना, अचार बहुत महंगा हो जाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम अचार, फिर हम सादे चावल खा लेंगे रायते के साथ। अच्छा, जी इसका कुरान में भी जिक्र है। ऑलिव है। जनाब ऑलिव यानी जैतून।
वत्तीनी वज़ैतून। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। आगे बढ़िए, आगे। ऑलिव्स भी माशाल्लाह देखें, पक्की हुई ऑलिव लाए थे येलो कलर के, बंदा पहचान ही नहीं सके, बंदा बेर बोल दे छोटे वाले और बच्चा फंस जाए बेचारा। अचार में भाई कहाँ से डालोगे जैतून? हाँ अरब में होता है, अचार नहीं, अचार टाइप एक चीज होती है, उसमें जैतून पड़ा होता है और उसके साथ ऑयल भी होता है। जी कंटेस्टेंट बी, ये सवाल आपके लिए और ये जानदार भी आपके लिए। बताइए ये कौन सा जानवर है? भेड़। जी भेड़। बिल्कुल, इसको उर्दू में तो मेरा ख्याल भेड़ ही कहते हैं और इंग्लिश में इसको, लेकिन ये भेड़ पता है एक खास किस्म का भेड़ है और इसका एक खास नाम भी है। अगर हम इसे खाली भेड़ कह लेंगे तो भेड़, और ये है भी नहीं भेड़, मेरा ख्याल भेड़ है भी नहीं है। बिल्कुल सही है, नहीं है भेड़, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भेड़। इसको कुछ कहते हैं, इसका नाम एल से आता है, लाम से आता है, लाम में भी इसका नाम छुपा हुआ है, मतलब कुछ जरा सी इजाफत के साथ इसका नाम आ जाएगा। और बोले आप बताएं, लफ्ज लाम है ना, जरा सा इजाफा करें इसका नाम आ जाएगा। अब क्लू दिया तो आप पहुंच जाएंगे और मैं तकरीबन पहुंचा चुका हूं आप। मतलब लाम ये भी इसका नाम है ऑलमोस्ट, तो जरा सा इजाफा करेंगे नाम हो जाएगा। बताइए, कोशिश करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बोल दें जो जो मन में आए बोल दें। नहीं आ रहा मन में कुछ भी? पी भी आखिर में आता है मेरा ख्याल। जी पी हाँ, नहीं पी नहीं आता, ये वो वाला नहीं है, मिलता है उससे बहुत। अच्छा। हाँ, बहुत मिलता है उससे। मैं भी कंफ्यूज हुआ था आपकी तरफ। जी लाम मैंने कह दिया था, आप कह देते लामा, इसे लामा कहते हैं, आप कह देते ना ये बहरहाल चले, थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन ऑलिव भी मुश्किल था। येलो कलर की ऑलिव निकाल के लाए थे बच्चे हमारे, ऐसी बात नहीं है, ग्रीन ऑलिव नहीं थी। जी अगला विजुअल है आयशा मुइन के लिए। बताइए ये किस अजीम सहाबी रसूल की कब्र मुबारक है? जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर से आप बकी में दाखिल होंगे, सीधे जाएंगे तो इन्हीं की कब्र आ जाएगी, और फिर जब पलट के देखेंगे तो हुजूर के कदमैन शरीफैन, अल्लाहु अकबर, हुजूर के कदमों में जिन सहाबा को जगह मिली, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान, इसी तरह हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इसी तरह एक सहाबी रसूल ये भी हैं और बहुत बड़े सहाबी हैं। जी हज़रत उस्मान। मुंह से तो निकल गया था, लेकिन मेरा क्लू नहीं था, ये मेरा क्लू नहीं था बाखुदा, लेकिन मैंने इसको, ये बच्ची समझदार, देखे इस तरह तो मैंने लाम भी उसको कहा कि जवाब था। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर इनके हुए, 10 नंबर इनके हुए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कुछ मुजाविर बैठे हुए थे और मैंने पूछा कि ये कब्र किसकी है, तो फिर वो मेरे साथी ने पूछा, उन्होंने कहा हज़रत उस्मान। अल्लाहु अकबर, उस्मान बिन मरवान, उस्मान, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह, उस्मान, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कह रहा था मेरे ज़बान से कुछ और निकला। जी मरवान, मेरा मरवान से मुराद, मेरे जहन में वो तारीख आ रही थी जो आप पर जुल्म हुआ 40 दिन तक, जो आपको ज़ाहिर है आपका पानी, कल मैंने डिस्कस भी किया था अल्लामा साहब के साथ के बहुत आपके साथ जुल्म हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ से हमें माला माल फरमाए, और मैं उसमें माफ़ी चाहता हूँ, ज़बान मेरी फिसली और नाम कुछ और निकल आया। जी अगला विजुअल कंटेस्टेंट है आपके लिए, ये किस मशहूर और मारूफ आलिम दीन की शबी है? मुफ्ती अकमल साहब। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर कंटेस्टेंट ए आपके हुए, मुफ्ती अकमल साहब, दुरुस्त जवाब है। कंटेस्टेंट बी अगला विजुअल आपके लिए। जी बताइए, फलस्तीन के साबिक सदर और बड़े मशहूर साबिक सदर, इनके नाम में मतलब जैसे मैदान अराफात से भी इनका नाम, अराफात से पहले एक लफ्ज आता है, वो इनका नाम है, वो पूरा नाम हो जाएगा। बताइए। अच्छा यासिर एक क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेलता है यार। हाँ वो नो डाउट, हाँ बेहतरीन खेलता है, बहुत अच्छा खेला। एक वो कल भी आया हुआ था, वो भी यासिर है। हाँ बताइए। कंटेस्टेंट बी, तुम्हें मैंने सेलेक्ट किया था, ये मेरी गलती नहीं थी, ये साबित कर दो, साबित कर दो कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, और आज मैंने किसी की ताईद नहीं की, सबसे नाम बता दिया है। चले चले बाहर। यासिर अरफात। यासिर अरफात, 10 नंबर दे दें, क्लूज हमने तकरीबन सबको बराबर ही दिए, तो आपको भी यासिर अरफात इनका नाम है, ठीक है। 10 नंबर आपके कंटेस्टेंट बी। कंटेस्टेंट सी अगला और आखिरी आपने यासिर अरफात। अरफात बोला, सही बोला। चले कोई बात नहीं, मुसाब अब बोल ही दिया बच्चे ने, कुछ तो हमारी टीम को भी मुसाब मौका दे दें। जी कंटेस्टेंट सी आइए, बताइए। काबे के इमाम रहे हैं जी जी, अब्दुल रहमान इब्ने सुदैस। शाबाश, क्या बात है, वाह 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 भाई वाह, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर कंटेस्टेंट ठीक है, और बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। बताइए आप तीनों तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? आगाज किया जाए, टाइमर लगवाया जाए, टाइमर लगवाया जाए। जी
चलें, कंटेस्टेंट ए आपके लिए बिस्मिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा तदवीन कुरान का काम किसके मशवरे? हजरत उमर। दुरुस्त जवाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा और तदवीन कुरान का काम हजरत उसामा बिन ज़ैद। ना, हजरत उसामा बिन ज़ैद। नहीं, मेरा सवाल तो सुन ले, किसके सुपुर्द किया था ये काम? हजरत उसामा बिन ज़ैद। नहीं, गलत जवाब है आपका। हजरत ज़ैद बिन हारिस। बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम किस खलीफा राशिद ने हजरत उमर। दुरुस्त जवाब। राह हक में सबसे पहला तीर हजरत साद बिन अबी वकास। दुरुस्त जवाब। गसीलुल मलाइका किस सहाबी रसूल हजरत का? हंज़ला। दुरुस्त जवाब। हजरत बिलाल हबशी को किस सहाबी ने खरीद कर आजाद हजरत किया? अबू बकर। दुरुस्त जवाब। और रैपिड फायर में वो जरा सा एक आ गया, लेकिन बाल उसके लिए मैं आपसे जिस तरह रोजाना करता हूँ, रूल ब्रेक करता हूँ कि अगर कहीं मैं इंटरप्ट हुआ और आपका टाइम इंटरप्ट हुआ तो मैं एक सवाल और करता हूँ। तो मैं अपना आखिरी सवाल फिर आपसे करता हूँ। इस्लाम में सबसे पहले बाकायदा अजान किसने दी? बाकायदा। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब जी। कंटेस्टेंट भी आप तैयार हैं? बताइए। बिस्मिल्लाह। रूहुल अमीन किस फरिश्ते का लक़ब है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। मलकुल मौत किस फरिश्ते का लक़ब है? इस्राइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। मसीहुल्लाह किस नबी का लक़ब? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तौरात गलत जवाब दे रहे हैं आप। किस पर नाजिल बताएं? तौरात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। मूसा हज़रत अलैहिस्सलाम। जी। हजरत मसीहुल इस्लाम किस सहाबी रसूल का लक़ब है? मसीहुल इस्लाम किस सहाबी का लक़ब है? हजरत जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए? जंग मोता। दुरुस्त जवाब। हजरत हमजा को किस जंग में शहीद किया गया? जंग उहद। दुरुस्त जवाब। एक नंबर आपने गलत दिया, ओ एक सवाल आपने गलत दिया। ये 10 नंबर आपके रह गए, लेकिन बाकी सारे आपने माशाल्लाह दुरुस्त जवाब दिए। आते हैं कंटेस्टेंट सी की तरफ। आखिरी रैपिड फायर आपके लिए, तैयार रहिए, जल्दी जवाब देना है जी। बिस्मिल्लाह। उम्महातुल मुमिनीन किन्हें कहा जाता है? उम्मत की माँ है। उम्मत की माँ हुजूर लेकिन- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज। दुरुस्त जवाब। सबसे ज्यादा हदीस की सहाबी ने बयान। हज़रत अबू हुरैरा। दुरुस्त जवाब। खादिम रसूल की सहाबी का लक़ब है? अनस बिन मालिक। दुरुस्त जवाब। रूहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? रूहुल्लाह। रूहुल्लाह। हज़रत ईसा। दुरुस्त जवाब। असा और यद बैजा किस नबी हज़रत के? मूसा। दुरुस्त जवाब। परिंदों की बोली किस नबी को सिखाई गई? हज़रत सुलेमान। दुरुस्त जवाब। किस नबी के हाथ में लोहा गर्म हो जाता? हज़रत दाऊद। दुरुस्त जवाब। और रैपिड फायर के सारे जवाब दिए आयशा ने, और सारे जवाब इन दोनों ने भी दिए, लेकिन एक एक जवाब मेरे ख्याल आपके सारे जवाब दुरुस्त थे। अच्छा चले, वो तो स्कोरिंग होगी, पता चल जाएगा। हम देख लेंगे। एक जवाब कंटेस्टेंट बी जो है वो नहीं दे सके रैपिड का, और देखना यह है कि विजुअल और रैपिड के बाद ओवरऑल बजर के मार्क्स मिलाने के बाद कौन सा कंटेस्टेंट है जो आगे बढ़ रहा है। अगर टाई हो गई तो क्या ही बात है, जिंदाबाद, टाई होनी चाहिए। मैं टाई के लिए बड़ा मुंतजिर रहता हूँ कि किसी तरह टाई हो और हम आगे बढ़े। लेकिन मुझे वेरी इंटरेस्टिंग आज का जो मुकाबला है बहुत शानदार हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसा स्कोर कार्ड मेरे हाथ में नहीं आया कि सबके नंबर बराबर हो। यानी सारी टीमें ऑलमोस्ट टाई नहीं हुई, लेकिन सारी टीमें ऑलमोस्ट बराबरी से खेली और बड़े मुकाबले से खेली। कंटेस्टेंट ए ने हासिल किए 120 नंबर, कंटेस्टेंट बी ने हासिल किए 100 नंबर, और कंटेस्टेंट सी ने हासिल किए 110 नंबर। और इस तरह कंटेस्टेंट ए क्वालिफाई कर गए क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। बहुत मुबारक हो कंटेस्टेंट ए को। जनाब आप सर आंखों पर नाम भी नहीं लिया। आपसे देखे मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब और आमिर फयाजी साहब की टीम जीत गई है, इसलिए जो है वो उनकी खुशी दीदनी है, लेकिन आपस की बात है। अच्छा, कारी साहब की टीम ने भी कम मुकाबला नहीं किया। कम, और मेरी टीम ने भी कोई कम मुकाबला नहीं किया। 100 नंबर के साथ बच्चा आगे बढ़ा तो सही। अरे तीनों ने आज बड़ा अच्छा है आप तीनों के साथ। नहीं, आपने अपनी टीम के लिए बहुत दुआएं की। मैं दुआएं तो कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपस की बात है। आप लोगों से हार के भी मुझे वो खुशी मिलती है जो जीत कर नहीं मिलती, क्योंकि आप बड़े हैं हमेशा। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मिलता हूं आपसे एक ब्रेक के बाद बज़्म कुरान। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।